श्वेता श्रीवास्तव, अब तक हमास के आतंकी बंकरों की तस्वीरें दुनिया को चौंका रही, लेकिन गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में इजरायली सेना ने एंट्री ली तो उससे भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हमास की शातिर सोच सामने आ गई है। क्या है ये पूरी खबर, आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त कौन सी आ रही है वो आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने एक बार फिर हमास के आतंकी मंसूबे की पोल खोल कर रख दी है। उसका वीडियो सबूत भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक एक कर दिखाए हैं। बड़ी खबर, आईडीएफ के अधिकारी जब अल शिफा हॉस्पिटल के उस सेंटर पर पहुंचे जिसकी आड़ में आतंकी संगठन हमास ने हथियारों का जखीरा छिपाए हुए था, वहां पर अपना टेरर सेंटर बनाए हुए था ताकि हमास पर किसी तरह का शक न हो। लेकिन इजरायली जवान ने खुफिया जानकारी के बाद यहां छापेमारी की और एक एमआरआई सेंटर के एक कमरे को स्कैन किया और हमास के हथियार कैमरे पर दिखाए हैं। आईडीएफ की तरफ से ये रेड 36वीं डिवीजन ने किया। अब उसका सिलसिलेवार वीडियो भी आगे हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे खतरनाक मंसूबे हमास के आतंकियों ने पाल रखे हैं। तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। एमआरआई सेंटर है और इस एमआरआई सेंटर में मरीजों का स्कैन होना था, लेकिन जब आईडीएफ के जवानों ने इस एमआरआई सेंटर का स्कैन किया तो क्या दिखा है इसके अंदर, वो देखिए। Shalom everyone, Lieutenant Colonel Jonathan from the IDF here. I am in the Shifa Hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video, one shot, no editing of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa Hospital. So we're inside the MRI center of the Shifa Hospital. Israeli troops breached here a few hours ago and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. तो इजरायली डिफेंस फोर्स को एमआरआई सेंटर से AK-47 भी मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या क्या मिला है आपको बताते हैं। अल शिफा हॉस्पिटल में सीक्रेट तरीके से ये हथियार रखे गए थे। भारी तादाद में मैगजीन और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी है कि हमास के फिदाइन जैकेट भी इजरायली डिफेंस फोर्स को बरामद हुए हैं। It is definitely an MRI machine, and if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you'll be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Still in the MRI center, the backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here, but we'll leave that for another discussion. Let's go see weapons and other prohibited items. This is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip, for their illicit military purposes. So there's Kalashnikov rifles here, even ammunition. और अल शिफा के एमआरआई सेंटर से हमास के रेडियो भी मिले हैं। तो आपको देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमआरआई सेंटर में कैसे हथियारों का जखीरा रखा गया था। तो बड़ी खबर
है कि हमास के रेडियो भी मिले हैं कम्युनिकेशन के लिए। हमास ने लैपटॉप भी रखा था, यानी आपस में ये आतंकी कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे अलग अलग इलाकों में गाजा पट्टी के, वो भी जरिया इसमें बरामद हुआ है। सीडी भी बरामद की गई है। Another MRI machine where behind it we also found a contraband similar to what you saw in the other areas of the MRI department. We found another grab bag. This is it's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist: a live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area, take a look at this door here. Blast-proof door, which is part of the clinic and part of the infrastructure of the hospital. Let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military medical stuff. We found another go-to bag, this bag here. And again, we opened it up in order to make sure that it's safe to touch and show. So please don't give me any of that. You opened it up and you placed it there. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go, which they thought would be a good place to store inside a hospital. Is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of discs, which will be analyzed, and a computer which at first glance already provides a lot of incriminating evidence. और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ग्राफिक्स देखकर आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अस्पताल का इस्तेमाल कैसे आतंक के अड्डे के तौर पर किया जा रहा था। और इसको ये समझिए कि अस्पताल से क्या क्या मिला है। अल शिफा अस्पताल से AK-47 राइफल्स की बरामदगी हुई है। इसके अलावा क्या मिला है, राइफल्स की गोली यानी कारतूस की भी बरामदगी अल शिफा हॉस्पिटल से हुई है। MRI सेक्शन में जब IDF के जवान घुसते हैं तो हैंड ग्रेनेड की भी बरामदगी हुई है। इसके अलावा हमास की वर्दी यहां पर रखी गई थी, यानी कि इसका इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। और क्या मिला, मिलिट्री किट भी यहां से मिली है IDF के जवानों को, और साथ ही विस्फोटक सामान भी मिला है जिसका इस्तेमाल आतंक के अपने सप्लाई के लिए कर रहे थे, जो सप्लाई है उसके लिए कर रहे थे। इसके अलावा लैपटॉप, CD, रेडियो, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा था, कम्युनिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और साथ ही फिदाइन जैकेट जिसका इस्तेमाल आतंकी करते हैं, उस फिदाइन जैकेट की भी बरामदगी यहां से हुई है। और अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस अस्पताल में इजराइल की कौन सी यूनिट क्या कर रही थी, क्या जानकारी मिली थी, और उसके बाद यहां पर कैसे एंट्री हुई और क्या क्या बरामद हुआ, वो हमने आपको बताया है। तो देखिए, ऑपरेशन अल शिफा की जो पूरी कमान है वो किसके पास थी, वो थी 36 डिवीजन कमांड के पास में। जी हाँ, ये 136 डिवीजन जो कमांड है उसके हाथ में थी। शेलडॉग यूनिट इमरजेंसी एक्शन के लिए हमेशा रेडी रहती है। और इसके अलावा स्पेशल यूनिट अस्पताल में माइंस टाइमर सर्च करे थे। इसके अलावा 36 आर्म डिवीजन अस्पताल के बाहर इसने डेरा डाला था, यानी किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस यूनिट के हाथ में क्या काम था, कैसे ये सब कुछ सामने आया, ये हमने आपको बताया है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल AK सिवात सर। सर, कैसे अस्पतालों का इस्तेमाल आतंक के अड्डे के लिए किया जा रहा है, एक एक तस्वीर अब सामने आ रही है। IDF के जवान जब अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो जहां मरीजों का इलाज होता है वहां रखे गए हैं विस्फोटक, वहां रखे गए हैं हथियार। किस तरीके से देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि अल शिफा हॉस्पिटल पहले ही बार बार इजराइल डिफेंस फोर्स बता रहे थे कि अल शिफा हॉस्पिटल में ऑपरेशन कमांड सिस्टम है हमास का, और ऊपर हॉस्पिटल चल रहा है, नीचे वहां पर कमांड हेडक्वार्टर है, उनके कोच थे जहां पर हथियार रखे गए थे। उसके बाद वहां का लॉजिस्टिक बिल्डअप भी वहीं पर किया गया था। तो अल शिफा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर का हिस्सा था हमास का। ऊपर से तो दिख रहे थे कि जो कि वो हॉस्पिटल है, वहां पर लोग जो बीमार है उनको एडमिट किया जा रहा है,
मगर उसके नीचे जो है वहां से चल रहा था उनका ऑपरेशन कमांड सिस्टम, जहां से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा था। हथियारों का जो जमावड़ा वहां पर, ऑपरेशन लॉजिस्टिक का जमावड़ा। तो ये सच्चाई है। ये बार बार जो इजराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि स्कूलों का, हॉस्पिटलों का और मॉस्क का जो इस्तेमाल हमास कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो हथियारों के लिए, वो इसको मिलिट्री यूज के लिए कर रहा है। और जब आईडीएफ वहां पर जाती है तो फिर वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन का शोर मचाया जाता है। तो ये दरअसल मकसद ही यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि हमास के आतंकियों का जो मकसद है वो यही है कि इस तरीके से इन जगहों पर मस्जिदों का आप इस्तेमाल करें, अस्पतालों का आप इस्तेमाल करें आतंकी अड्डा बनाने के लिए, और ताकि जब वहां पर अटैक हो तो आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कहें इजराइल के खिलाफ। एक और बड़ी खबर यह है कि गाजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्स का जमीनी हमला जारी है, ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, और इस ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। हमास के आतंकियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। आईडीएफ ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, हमास के आतंकियों पर बम बरस रहे हैं, और ये देखिए तबाही की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और चलिए आपको फिर ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि गाजा में अब तक कितनी तबाही हुई है, इतना वक्त बीत चुका है और कितनी तबाही वहां देखी जा रही है। तो अब तक इसको सबसे पहले जो मौत का आंकड़ा है अगर वो आप समझ पाएं तो 11,500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जाहिर तौर पर कोलेटरल डैमेज भी बहुत हुआ है यहाँ पर, जाहिर तौर पर कोलेटरल डैमेज भी बहुत हुआ है यहाँ पर। 29,800 लोग इसमें घायल हुए हैं और इसमें फिलिस्तीन के नागरिकों की तादाद ज्यादा है। 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं और साथ ही 2,23,000 घरों को नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो एक करके जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, 42,000 घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। तो साथ ही 95 सरकारी बिल्डिंग्स भी खाक हो चुकी हैं। यानी फिर से जो ये पूरा इलाका है वहां जिस तरह का नुकसान पहुंचा है, वापस सब कुछ ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। और देखिए नेतन्याहू तो ये साफ कर चुके हैं कि जब तक एक एक हमास का आतंकी तबाह नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसी तरह के हालात वहां पर बने रहेंगे। जनरल सिवाच बहुत नुकसान हुआ है और जाहिर तौर पर हमास के आतंकी चाहते भी यही हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोलेटरल डैमेज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। हाँ बिल्कुल श्वेता, देखो सच्चाई ये है कि इजराइल चाहता था कि जो सिविलियन है पैलेस्टीन के नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा चले जाएं, और उनके लिए उन्होंने लीफलेट भी बांटे, वार्निंग भी दी और वहां पर ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाए। पहले एक बनाया, अब 2। मगर जो हमास उनको जाने नहीं दे रहा, उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और कोलेटरल डैमेज चाहता है कि ये दिखा पाए वर्ल्ड में कि बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, जबकि ये कतई सच नहीं है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्कूल का, हॉस्पिटल और मॉस्क का इस्तेमाल किया है, अपना ऑपरेशन कमांड सिस्टम, लोगों का इस्तेमाल किया है उसने ह्यूमन शील्ड के लिए, मगर अभी उसका काम तमाम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आज इजराइल की फोर्स ने गाजा पट्टी का जो नॉर्दर्न हिस्सा है ऑलमोस्ट 90% पूरा उसने अपने कब्जे में ले लिया है। गाजा सिटी पे भी मॉपिंग ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं और ये सच्चाई है कि अब हमास अंतिम चरण में है। यूं तो उसके जो लीडर हैं हानिया कतार में बैठे हैं, कुछ टर्की और सीरिया में भी है, मगर अभी जो नॉर्थ गाजा में जिस प्रकार से हमास का बोलबाला था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है और ऐसा लगता है इजराइल की फौज कुछ एक चंद एक दिनों में जो है इसको पूरे काबू ले लेगी और उसके बाद मुझे लगता है साउथ गाजा की तरफ ध्यान जाएगा। क्या इस लड़ाई में हिजबुल्लाह आता है, हौती रेबल इसमें दाखिल होते हैं, वो तो समय ही बताएगा, मगर अभी इजराइल का फोकस है हमास की तरफ कि पूरी गाजा पट्टी को हमास से 7 अक्टूबर के बाद से ही पूरा फोकस इजरायली डिफेंस फोर्स का हमास की तरफ है और चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ गाजा में आईडीएफ का जबरदस्त एक्शन जारी है। आतंकी ठिकानों पर घुसकर खात्मा किया गया है। इजरायली सेना और आतंकियों में इस बीच एनकाउंटर की तस्वीरें भी सामने आई है। ये बड़ी खबर, आतंकी ठिकानों पर घुसकर खात्मा किया है। जरा देखिए। और एक और बड़ी खबर, हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के आतंकी भी इजरायली सेना के निशाने पर हैं। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के कई आतंकी ठिकानों का खात्मा किया है। दरअसल लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ ने हमले का ड्रोन वीडियो जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई
जहां हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। और ये जरा तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि लेबनान की तरफ से, लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के आतंकी भी इजराइल पर अटैक कर रहे थे और ऐसे में जो ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के आतंकियों के, उन पर भी अटैक किया जा रहा है। और साथ ही इससे पहले इजराइल की तरफ से ये साफ भी कर दिया गया था कि अगर यही हाल जारी रहा तो बेरूत को भी हम गाजा पट्टी बनाएंगे। और चलिए के बाद एक जो 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो आपको बताते हैं वॉर जोन से। जो वॉर फ्रंट पर बड़ी खबर है वो ये कि करके तो सबसे पहला अल-शिफा अस्पताल में इजराइल का ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद वहां हथियारों का जखीरा मिला। बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ के जवानों की तरफ से हथियारों की खेप मिली है। इजरायली सेना के जवान ने वीडियो बना के भी सामने रखा है। इसके अलावा खबर यह कि हमास ने इजरायली सेना का प्रोपेगेंडा इसे बताया है। बुलडोजर से अस्पताल बर्बाद किया, हमास ये आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि जानबूझकर मरीज वहां मौजूद थे लेकिन तबाही की गई। दुश्मन क्रूर, लेकिन वो हमें नहीं जानता, एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। वहीं इजराइल ने यूएन में गाजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, ये भी बड़ी खबर। जो बाइडेन ने इधर कहा है कि हमास ने युद्ध अपराध किए हैं, वॉर क्राइम किया है और इसीलिए ये जवाबी हमले हो रहे हैं। इसके अलावा इजराइल की तरफ से बड़ी खबर ये कि विपक्षी नेता ने नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा है। जी हाँ, इजराइल के अंदर भी देखिए कैसे अब इस पर सियासत हो रही है, अब इस्तीफा मांगा गया है। और बड़ी जानकारी एक के बाद एक सामने आ रही है। 10 ब्रेकिंग जो है वो हम बता रहे हैं। जनरल सिवाच, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए धीरे धीरे अब इजराइल के अंदर भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। मुझे याद आता है कि जब यह अटैक 7 अक्टूबर को हुआ था, उससे कुछ वक्त पहले तक अपनी अंदरूनी समस्याओं से इजराइल जूझ रहा था। सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और इसी का फायदा मुझे लगता है हमास के आतंकियों ने इस वक्त उठाया, क्योंकि जो ध्यान था पूरी तरीके से उस पर था। अब फिर से एक बार वैसा आ रहा है जब विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जो जुडिशरी रिफॉर्म लेके नेतन्याहू आ रहे थे वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा था इजराइल में। और मुझे लगता है कि हमास ने लास्ट 2 साल में बहुत तैयारी की और कहीं ना कहीं इजराइल को ये ना पता नहीं चला, ना मासूद जो कि एक सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, बिल्कुल नहीं पता चला। और जिस प्रकार से 7 अक्टूबर का ऑपरेशन हुआ है और बहुत भारी कैजुअलिटी हुई है इजराइल की, तो ये तो है, आक्रोश है इजराइल में। और वो समझते हैं कि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करने में फेल होगी। तो ये सच्चाई है। मगर अभी मुझे लगता है सारा फोकस जो है वो हमास की तरफ है और अभी पूरा देश इकट्ठा है। मगर जैसे ये लड़ाई खत्म होगी, फॉल्ट लाइन वहां पर और उभरेंगी और कहीं ना कहीं नेतन्याहू की जो एक प्रकार से इस्तीफे की भी मांग बढ़ेगी। मगर आज की तारीख में हमास को खत्म करने में आईडीएफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह जो कि साउथ लेबनान से, वो भी ऐसा लगता है इस लड़ाई के अंदर आ सकते हैं। और जैसे हमास मोर्चों पर इजराइल को अभी लड़ना पड़ सकता है। सर आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके लिए सीधे वॉर रूम चलते हैं। वॉर रूम जाकर के हम जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त क्या मिल रही है, वॉर रूम की तरफ रुख करते हुए हम आपको बताते हैं। देखिए स्पेशल वॉर रूम हमने बनाया हुआ है इसको लेकर, ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। तो बड़ी खबर यह कि गाजा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। वॉर रूम से बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि गाजा में इजराइल की सेना का बुलडोजर एक्शन, आतंकी के घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। हमास के झंडे समेत कई प्रचार सामान भी जब्त किए गए। ये तस्वीर देखिए, गाजा पट्टी में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर के जरिए एक आतंकी का घर जमींदोज किया गया। आतंकियों के ठिकाने, उनके घरों पर लगातार इजराइल का एक्शन जारी है और बताया ये जा रहा है कि जिस आतंकी के घर पर यह कार्रवाई हुई उसका नाम महमूद हुसैन नकला है। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये कि करीब 20 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए इजराइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए जेसीबी की सहायता से बुलडोजर एक्शन। के बाद एक जो बड़ी खबरें सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए और भी ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि वॉर फ्रंट की कोई भी खबर आपसे मिस ना हो ये हमारी कोशिश है, इसलिए एक और बड़ी जानकारी है वो आपको बताते हैं। इजराइल की सेना पर हमला हुआ है। जी हाँ, क्योंकि रिटेलिएशन जाहिर तौर पर हमास के आतंकी भी कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास ने हमला किया। आसमान से आईडीएफ के जवानों पर बम गिराए गए। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने ये अटैक किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान लगे हुए और इस दौरान आसमान से हवाई हमला किया गया है जवानों के ऊपर। और हमारे साथ जनरल सिवाच लगातार जुड़े हुए हैं। सर
इतना वक्त बीत चुका है, ग्राउंड ऑपरेशन की जहां तक बात है वहां पर थोड़ी दिक्कत इजराइल के जवानों के लिए इस लिहाज से है क्योंकि बहुत ही डेंस गाजा पट्टी का इलाका है, वहां की गली गली से वाकिफ है हमास के आतंकी, वहीं रहते हैं और जो टनल्स उन्होंने बना रखे हैं, जमीन के जो सुरंग बना रखे हैं उसमें छिपकर वार करते हैं। हाँ देखो, ये तो सच्चाई थी कि जो ग्राउंड ऑपरेशन थे वो बहुत ही मुश्किल होने वाले थे गाजा पट्टी में, क्योंकि जो हमास है उसने टनल बना रखी है, बिल्टअप एरिया है, फाइटिंग बिल्टअप एरिया में बहुत धीरे होती है, अटैकर को नुकसान ज्यादा होता है, डिफेंडर को उसके इलाके की वाफियत है, तो हमास इसका इस्तेमाल कर रहा है, टनल्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए वो कैजुअलिटी भी हो रही है कुछ इजराइल की। मगर मुझे लगता है इजराइल बड़े प्रोफेशनल मैनर से आगे बढ़ रहा है और उसने स्पॉन्ज बॉम्ब से एक प्रकार से जो टनल डिफेंसेज है उनको भी नकारा किया है और उसके साथ साथ जो बिल्टअप एरिया में मिनिमम फोर्स यूज करके कोलैटरल डैमेज कम से कम हो, आगे बढ़ रही है इजराइल की फौज। और मुझे लगता है कि कुछ एक समय में, आने वाले कुछ एक समय में वो हमास को बिल्कुल खत्म कर देगी और ये सच्चाई है कि हमास अभी डरा हुआ है, घबराया हुआ है और वो बार बार पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी जो गेम प्लान थी कि टनल डिफेंसेस के अंदर घुसना पड़ेगा इजराइल की फौज को, वो मुझे लगता है इजराइल की फौज ने नकारा कर दिया। बिल्कुल सर, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि जो तबाही गाजा पट्टी में देखने को मिल रही है वो उसी तरीके की है जो चेतावनी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दी गई थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बहुत